कर्नाटक में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क परेशान है, रियासत के लोग परेशान हैं। पूरे रियासत में ऑक्सीजन, दवाइयाँ और दीगर ज़रूरी चीज़ों के लिए, अस्पताल के लिए लोग बुरी तरह से मुतासिर हैं और परेशान हैं। ऐसे हालात में आम लोग कोस रहे हैं हुकूमत को। ऐसे में तेजस्वी सूर्या मैदान में उतर चुके हैं। आज तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो उन्होंने कहा कि बीबीएमपी के तहत चलने वाले वार रूम में घोटाला हो रहा है, वहाँ पे ब्लॉक करके लोगों को ब्लैक में अस्पताल के बेड्स दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बीबीएमपी के जो जिम्मेदार हैं उनसे डिस्कस कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे, रिकॉर्ड हुआ है पूरा। वो कह रहे हैं कि मुसलमान वार रूम में इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों हैं, मुस्लिम डॉक्टर क्यों हैं वार रूम में। वो पूरे नाम गिना रहे हैं कि असलम है, वो है, ये है, इतने डॉक्टर क्यों हैं। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है मुस्लिम कितने हैं वार रूम में, और वो पूरी लिस्ट जो है वहाँ के गिन रहे हैं। वार रूम में तमाम मज़हब के लोग हैं। मुसलमानों की हो सकती है तादाद, मुस्लिम डॉक्टरों की ज़्यादा हो। अगर ऐसा है भी तो क्या गलत है? क्या मुसलमान वार रूम में नहीं होना चाहिए? आखिर तेजस्वी सूर्या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना क्यों चाह रहे हैं? क्या रियासत की आवाम का जहन डाइवर्ट करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के वो दोबारा जो माहौल चल रहा है इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये लोगों को अपना तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? आखिर चाहते क्या हैं? क्या लोग हुकूमत को पूछने के बजाय आपस में लड़ते रहें? तेजस्वी सूर्या का कहना है कि वार रूम में मुसलमान क्यों ज़्यादा हैं। क्या तेजस्वी सूर्या को पता नहीं है कि वार रूम में सिलेक्शन कौन करते हैं? वार रूम में सिलेक्शन करने वाले कौन हैं? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೆ CHBMS ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಇವರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 17 ಜನ: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ತಾಯಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯದ್, ಅಲ್ಸಾಯ್ ಸಯೀರ್, ಉಮೇರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹುರೀಫ್, ಜಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ಜಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಹಸ್ನೈನ್, ಸೈಯದ್ ಶಾಹಿದ್, ಶಹೀದ್ ಶಬಾಸ್, MD ಯೂನಸ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಯಿನ್ ಶಾ, ಸೈಯದ್ ಮುಯೇಶ್ ಶಾ, ಅಲ್ಸಾಯಿನ್. Who is this? Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ Process ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? What is the process ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಾ? ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕರೆಸಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು? 17 ಜನ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? What do you think, man? No. It's an intention. It's happening, sir. These people only has done that. We have ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಜನ ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬೀದಿಗೆ ಉಗಿತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅರ್ಜಿ ಕಮಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್? Who appointed this? ನಿಮ್ಮ Who ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ appointed this? ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಯಾರು MBBS ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ? MBBS ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರಬೇಕಾ, ನೀವಿರಬೇಕಾ BDS ಅವರು? ಇದು ನೀವು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನು ಟ್ರಯಾಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಮೇಡಮ್. BDS ಮತ್ತು BAMS ಉನಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು MBBS ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಿ? MBBS ಅವ್ರು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ? ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ವ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ MBBS ಡಾಕ್ಟರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಇವ್ರ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಮೇಡಮ್, ನೋ ನಾನು ಬಿಗ್ ಮೆಸ್. ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಇದು ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ BJP MLAಗಳ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಸಾಯ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಯಾರು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಪ ಅವನು ಯಾರೋ. बीबीएमपी के वार रूम को बनाने वाले जॉइंट कमिश्नर तुलसी हैं, उनके साथ में हेल्थ ऑफिसर हैं, उसके अलावा जॉइंट कमिश्नर हैं। इसमें इन तीनों लोगों में जो जोनल ऑफिस बनाए हैं, जो वार रूम बनाए हैं, वार रूम बनाने वालों में 3 लोग शामिल हैं और तीनों के तीनों गैर मुस्लिम हैं। आखिर तेजस्वी सूर्या क्या साबित करना चाहते हैं? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से मामला हल हो जाएगा? क्या लोग बच जाएंगे? क्या मरने की तादाद कम होगी? आखिर तेजस्वी सूर्या ये कार्ड क्यों खेलना चाहते हैं? वहाँ उनके साथ में मौजूद एक MLA कह रहे हैं, क्या आपने मदरसा बना रखा है?
क्या उनको पता नहीं कि आज कर्नाटक में क्या सिचुएशन है? मुसलमान फ्रंट लाइन पे हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद नौजवानों की बगैर डरे अपनी जान को जोखिम में डाले हुए लोगों की खिदमत कर रही है। यहाँ तक कि गैर मुसलमान जब अपने ही ख़ानदान के लोगों को, अपने ही रिश्तेदारों को जलाने से, उनकी तदफीन करने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे वक्त में मुसलमान ही फ्रंट लाइन पर जाके उनके रस्म के मुताबिक, उनके रिवाज के मुताबिक तदफीन कर रहे हैं। क्या ये तेजस्वी सूर्या नहीं देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने से क्या मसले हल हो जाएंगे? तेजस्वी सूर्या साहब को समझना चाहिए, बेंगलुरु साउथ के एमपी हैं, यही वो एमपी हैं जिन्होंने एनआरसी के एहतजाज के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि मुसलमान पंचर निकालने वाले हैं, और उसके बाद न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पे इनकी थू थू हुई थी, इनकी बदनामी हुई थी। इन्हें हर कोई जो है कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। तेजस्वी सूर्या सिर्फ कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एमपी हैं, हुकूमत उनकी है, रियासत में भी हुकूमत बीजेपी की है, मरकज़ में भी है। क्या तेजस्वी सूर्या को वज़ीर आला से नहीं बात करना चाहिए? इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की क्यों कोशिश की गई है? खुद एडमिनिस्ट्रेटर में है उनकी सरकार, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्यों वार रूम में मुसलमान हैं। कितनी अहम बात है, आप इसे गौर कर सकते हैं, और ये मैसेज आप गैर मुसलमानों तक भी पहुंचाएं, जहां हिंदू मुस्लिम का कार्ड ख़त्म हो चुका है, रियासत में हिंदू और मुसलमान मिलकर काम कर रहे हैं और अपनी अपनी जान, अपने ख़ानदान की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। क्या हुकूमत को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि यही एक रास्ता बचा है कि बदनामी से बचाया जा सके? आप हुकूमत जब काम नहीं कर रही है तब लोग गाली दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और हुकूमत को कोस रहे हैं। ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಚಪ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವ್ ಇದೇ ತರ ಸರ್ಕಾರನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಪ್ಲಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರ್ಗು ಅದೇ ತಿಂತೀರಾ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬಡವ್ರ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. ದಿನವಿಡೀ ಒಂದು ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜನಗಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ? ಇನ್ನು ಸತ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರಲ್ಲ. 2 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಜನಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾಳೆನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೇಡ. और माइंड डाइवर्ट करने के लिए, आप अट्रैक्शन लेने के लिए क्या इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या मुसलमानों को वार रूम में नहीं रहना चाहिए? अगर ज़्यादा तादाद है तब भी क्या गलत बात है? अगर मुसलमान जान जोखिम में डाल के फ्रंट लाइन में आके काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं तो आपको एतराज़ है इससे भी? कहाँ थे आप इतने दिनों से? कहाँ गायब थे आप? अचानक आप आ गए और कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या के कम्युनल कार्ड खेलने के बाद अचानक आईटी सेल भी एक्टिव हो चुका है। बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर सरफराज साहब को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में सरफराज खान को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस वार रूम को बनाने में, यहाँ डॉक्टरों को सिलेक्शन करने में सरफराज खान का कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि ये जो वार रूम होती है, इसे सिलेक्शन करने में जोनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर शामिल होते हैं। तीनों लोगों में मुसलमान ही नहीं है, लेकिन सरफराज खान को टारगेट किया जा रहा है। सरफराज खान से जब हमने बात करने की कोशिश की तो सरफराज खान ने बताया कि वो कल साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करने वाले हैं। वो कंप्लेंट देंगे क्योंकि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।